Dear students, welcome to my YouTube channel, आओ chemistry सीखें. Let's enjoy chemistry. Today we are going to discuss the fourth lecture of chemical kinetics and it is about the rate of a chemical reaction. This lecture is useful for the students of class 12th and BSc. So, आओ chemistry सीखें. Let's enjoy chemistry. तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से और वो क्वेश्चन है व्हाट इज ए केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर आप बता सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। ए चेंज विच इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इज नोन एज ए केमिकल चेंज। फिर एक प्रश्न आता है, नया पदार्थ किसे कहते हैं। The answer is a substance having a different composition from that of reactants is called as new substance. ऐसा पदार्थ जिसका कंपोजिशन रिएक्टेंट से अलग होता है उसे नया पदार्थ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर H2O को गर्म करें तो वह वाटर वेपर्स में बदल जाता है, लेकिन वाटर वेपर्स का कंपोजिशन ठीक वही होता है जो कि जल अथवा लिक्विड वाटर का होता है। इसीलिए वाटर वेपर्स को भी H2O ही लिखा जाता है। कहने का अर्थ है कि जब जल गैसीय अवस्था में बदलता है तो अवस्था परिवर्तन तो होता है, देयर इज ए फिजिकल चेंज इन फिजिकल स्टेट, लेकिन जल के कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता है। अर्थात conversion of liquid water into gas is not a chemical change. We can understand this with one more example. Here is a chemical reaction in which hydrogen gas reacts with iodine gas to form HI or hydrogen iodide gas. It can be shown by this picture. Here is hydrogen molecule H2 shown by yellow balls and I2 molecule shown by purple or violet balls. These two react to form hydrogen iodide, two molecules of hydrogen iodide. Here we can see that there is change in composition. Reactants have either yellow balls or purple balls, whereas the product has yellow as well as purple ball. So change in composition leads to chemical change. It can be understood in one more way. केमिकल चेंज को एक और तरीके से समझा जा सकता है, जैसा कि इस उदाहरण में भी दिख रहा है कि इस अभिक्रिया के दौरान, इस परिवर्तन के दौरान हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और आयोडीन मॉलिक्यूल्स में मौजूद केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और HI के रूप में नए बॉन्ड्स बनते हैं। सो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। So whenever a chemical reaction takes place, there are three aspects of the chemical reaction. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के तीन पहलू होते हैं। नंबर एक, क्या दी हुई परिस्थितियों में रिएक्टेंट्स के बीच अभिक्रिया हो सकती है अथवा नहीं। In correct words, it is known as feasibility of a reaction. And feasibility of a chemical reaction is given by thermodynamics. डेल्टा G की वैल्यू अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए नेगेटिव है तो under the given conditions the reaction is feasible. Once the reaction is feasible, अगर दी हुई परिस्थितियों में अभिक्रिया संभव है तो अगला प्रश्न यह आता है कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कुछ मात्रा लें तो वो किस सीमा तक प्रोडक्ट में बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टेकन 100 moles of hydrogen and 100 moles of iodine, then to what extent these moles of reactants will convert into product. This is known as extent of a reaction, and equilibrium constant gives idea about extent of a reaction.
If value of equilibrium constant is high for a given reaction, it means most of the reactant moles or concentration will convert into product before the attainment of equilibrium. This is the second aspect of a chemical reaction. The third aspect is the time aspect. That is, if reactants convert into product, यदि reactant product में बदल सकता है तो वह कितनी तेजी से प्रोडक्ट में बदलेगा, कितने समय में रिएक्टेंट की कितनी मात्रा प्रोडक्ट में बदलेगी. दिस इज नोन एज टाइम एस्पेक्ट ऑफ ए रिएक्शन और स्पीड बाय विच reactants will convert into product. And this third aspect of a chemical reaction given by another branch of chemistry known as chemical kinetics. Today onwards, we are starting a series of lectures on chemical kinetics. So dear students, coming to the definition of chemical kinetics. Chemical kinetics is defined as the branch of chemistry that deals with the time aspect of a chemical reaction. Going into detail, chemical kinetics involves in the study of number 1, rate of a chemical reaction, number 2, factors affecting the rate of a chemical reaction, and number 3, mechanism of a chemical reaction. Chemical kinetics या रासायनिक बल गतिकी में हम रासायनिक अभिक्रिया के 3 पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जिनमें पहला है अभिक्रिया की दर, दूसरा है वो कारक जो अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करते हैं, और नंबर 3 मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. अपने सब्सीक्वेंट लेक्चर्स में हम केमिकल काइनेटिक्स के इन 3 पहलुओं को विस्तार से पढ़ेंगे. Let us start with the first one, that is rate of a reaction. What is meant by rate of a chemical reaction? It is the change in the concentration of reactant or product in unit time. किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में एकांक समय में जितना परिवर्तन होता है, उसे उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कहा जाता है. इस परिभाषा को हम एक उदाहरण से समझते हैं. Here is the example. In this reaction, PCl5 on heating dissociates to form PCl3 and Cl2. इस रासायनिक अभिक्रिया में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो वह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में विभक्त हो जाती है. Our aim is to study chemical kinetics of this reaction. अगर हम इस रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमें एक बर्तन में PCl5 लेना होगा, उसे उस ताप तक गर्म करना होगा जहां पर अभिक्रिया संभव हो. क्योंकि हम टाइम एस्पेक्ट ऑफ ए रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जहां हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करेंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या शुरुआती सांद्रण क्या था. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस एट T is equal to 0. T is equal to 0 means it is the beginning of a chemical reaction. So at the beginning of chemical reaction, let us say हमने बर्तन में PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन लिया था 100 मोल पर लीटर. क्योंकि यह अभिक्रिया की शुरुआत है, इसका अर्थ है कि अभी कोई उत्पाद नहीं बना है, तो concentration of PCl3 as well as Cl2 will be 0. अब जैसे ही अभिक्रिया शुरू होगी, when reaction starts, then what will happen? Concentration of reactant will start decreasing. अभिकारक का सांद्रण अभिक्रिया के साथ साथ कम होता जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय के साथ साथ अभिकारक उत्पाद में बदलने लगता है. With time,
the reactant starts converting into product. That's why its concentration starts decreasing. So let us say 10 मिनट के बाद, after 10 minutes of a chemical reaction, the concentration of PCl5 comes to 60 mole per liter. अभिक्रिया के शुरू में PCl5 लिया गया था 100 मोल पर लीटर और 10 मिनट बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होकर रह गया 60 मोल पर लीटर। ये संख्या हमने केवल अज्यूम की है। तो आप बता सकते हैं कि इस 10 मिनट के दौरान PCl5 के कॉन्सेंट्रेशन में कितनी कमी आई। द आंसर इज 40 मोल पर लीटर। तो वो 40 मोल पर लीटर PCl5 कहाँ गया? अगेन द आंसर इज इट हैज कन्वर्टेड इनटू PCl3 और Cl2। 40 मोल पर लीटर PCl5 PCl3 और Cl2 में बदल गया। तो कितना PCl3 और कितना Cl2 बना होगा, इसे हम अंदाज से नहीं लिख सकते हैं। We have to write concentration of PCl3 formed and Cl2 formed on the basis of stoichiometry of this reaction। इस रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री ये बतलाती है कि अगर 1 मोल PCl5 डिसोशिएट होता है तो 1 मोल PCl3 बनेगा और 1 मोल Cl2 बनेगा। हम कह रहे हैं कि इस 10 मिनट के दौरान PCl5 के कॉन्सेंट्रेशन में 40 मोल पर लीटर की कमी आई। तो बैलेंस्ड इक्वेशन की सहायता से हम बता सकते हैं कि अगर 1 मोल PCl5 से 1 मोल PCl3 बनता है तो 40 मोल से 40 moles of PCl3 and 40 moles of Cl2 will form. So this will be the concentration of PCl3 and Cl2 after 10 minutes of start of reaction. So 10 मिनट बाद PCl3 का concentration होगा 40 मोल पर लीटर और Cl2 will also have 40 मोल पर लीटर। Let us say कि रिएक्शन कंटिन्यू हुई और 20 मिनट के बाद फिर से हमने नापा कि कितना PCl5 बर्तन में बचा है। And let us say it comes to 40 मोल पर लीटर। That means इन 10 मिनट्स के दौरान during these 10 minutes decrease in concentration of PCl5 was 20 मोल पर लीटर। 20 मोल पर लीटर सांद्रण PCl5 का कम हुआ। तो अब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की स्टोकियोमेट्री से बतला सकते हैं कि जितना PCl5 डिसोशिएट होता है उतने ही मोल PCl3 और Cl2 के बनते हैं। क्योंकि इस दौरान 20 मोल पर लीटर PCl5 कम हुआ तो 20 मोल पर लीटर PCl3 बना भी होगा। That means total concentration of PCl3 in that container will now be 40 plus 20, 60 मोल पर लीटर। सिमिलरली Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन भी 20 मोल पर लीटर बढ़ गया होगा और बढ़कर ये बन गया होगा 60 मोल पर लीटर। लाइकवाइज वी कैन गो ऑन। 30 मिनट के बाद माना PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन घटकर रह गया 30 मोल पर लीटर। सो इस दौरान 10 मोल पर लीटर की कमी इसके कॉन्सेंट्रेशन में आई। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री बतलाती है कि PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर, सिमिलरली Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही बढ़ जाएगा एंड द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स PCl3 as well as Cl2 will be 70 mole per liter in the container. After 40 minutes, let us say the concentration of PCl5 remaining was 25 mole per liter. इसका अर्थ हुआ कि इन 10 मिनटों के दौरान इसके कॉन्सेंट्रेशन में 5 मोल पर लीटर की कमी आई। तो स्टोकियोमेट्री ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये कहती है कि 1 मोल PCl5 अगर कंज्यूम हो रहा तो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बनेगा। तो अगर इस 10 मिनट में 5 मोल पर लीटर PCl5 कंज्यूम हुआ तो
5 मोल पर लीटर PCl3 और इतना ही Cl2 बनेगा। The new concentrations of PCl3 and Cl2 will be 75 मोल पर लीटर। यहाँ आप एक और चीज समझ रहे होंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी हम स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। As the reaction progresses, concentration of reactant decreases and concentration of product or products keeps on increasing. So this is the data of progress of a reaction. Now coming to our original topic, that is rate of a chemical reaction, which can be defined as the change in the concentration of reactant or product in unit time. तो अभिक्रिया के वेग को चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों तरह से परिभाषित किया जा सकता है। इफ वी डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम कैपिटल R स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स डेल्टा ऑफ R. Per unit time means we have to divide it by time interval delta t, and this division gives value of rate of a chemical reaction, और rate of chemical reaction को small r से लिखा जाता है। इस फॉर्मूला को और ठीक करने के लिए हम यहाँ पर एक माइनस साइन भी लगाते हैं। क्यों, इसे अभी समझेंगे। So this is the formula of rate of a reaction in terms of change in concentration of reactant. R is equal to minus delta R upon delta T. Why do we put this minus here? The answer is since delta concentration of R is a negative quantity, so it is multiplied with -1 to make the rate of a reaction a पॉजिटिव क्वांटिटी। इसको थोड़ा और समझते हैं। माना हम इस अभिक्रिया का वेग या रेट निकालना चाहते हैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की सहायता से। लेट अस से आवर एम इज टू फाइंड आउट rate of this reaction in first 10 minutes. So by definition we have to find out change in concentration of reactant and divide it by time interval. What is the change in concentration of reactant? It can be calculated by final concentration minus initial concentration. क्योंकि हम शुरुआती 10 मिनट्स में रेट निकालना चाह रहे हैं, तो फाइनल concentration हुआ 60 minus 100 divided by time interval 10 minus 0. If we calculate it, it will give minus 40 upon 10 or minus 4. Since concentration of reactant decreases with time, so if we apply this formula, it will give rate of reaction as a negative quantity. So to get the rate positive, we put in minus here. If we put a minus here from our side, then what will happen? This minus into minus will become plus. So rate in first 10 minutes of this reaction will be 4 mole per liter divided by unit of time. Here it is per minute. So this is what this formula says. Why do we put minus here? यहाँ हम एक माइनस क्यों लगाते हैं? उसका उत्तर है कि रिएक्टेंट का सांद्रण समय के साथ साथ कम होता जाता है, तो अगर हम माइनस नहीं लगाएंगे तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार जो भी रेट हमने कैलकुलेट किया है वो नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपनी ओर से फॉर्मूला में एक माइनस पुट कर देते हैं। सो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन in terms of change in concentration of reactant. Rate of a chemical reaction can also be calculated with the help of change in concentration of product with time. अगर हम प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है इसके अनुसार रेट को कैलकुलेट करना चाहें, then
we have to apply this formula. R is equal to delta P upon delta T. That is change in concentration of product divided by time interval. अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लगाया है. The answer is concentration of product increases with time, so its change will give a positive rate. अगर हम इस दी हुई अभिक्रिया के लिए प्रोडक्ट के अनुसार रेट कैलकुलेट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार होगा. Let us say we calculate rate of this reaction again in first 10 minutes by considering concentration of PCl5. So how to calculate? It is change in concentration of product divided by time interval. So change in concentration of product, that is PCl3 in this case, is 40 minus 0. Final concentration after 10 minutes minus initial concentration divided by time interval, that is 10 minus 0. It comes 40 upon 10 or 4 मोल पर लीटर पर मिनट. क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्लोरीन है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार भी कैलकुलेट कर सकते हैं. If you want to calculate it in first 10 minutes taking concentration change in chlorine, the answer will be 40 minus 0. This is the change in concentration of chlorine in first 10 minutes divided by time interval, that is 10 minus 0. So again it will give 4 mole per liter per minute. इस डेटा से हम किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. माना हमारा एम है कि पहले 40 मिनटों में कुल रेट ऑफ रिएक्शन कितना रहा, तो हम PCl5 के अनुसार या PCl3 या Cl2 किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज की सहायता से इस रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. आपकी सहायता के लिए मैं पहले 40 मिनट्स का रेट ऑफ रिएक्शन PCl5 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूं. सो द रेट विल बी change in concentration, that is final concentration 25 minus initial concentration, that is 100. So 25 minus 100. This is the change in concentration of PCl5 in first 40 minutes divided by time interval, that is 40 minus 0. And by this time you must have got the idea that if we are calculating rate of a reaction using concentration of reactant, we have to put a minus here. So it will become minus 25 minus 100 will give minus 75 divided by 40. These two minus will multiply to give positive rate of reaction, and 75 divided 40 will give 1.875 mole per liter per minute. So this is how we can calculate a rate of this chemical reaction in first 40 minutes. If we know data of change in concentration of reactant and product, we can easily calculate a rate of a chemical reaction using these two formula. यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात जो हमें सीखनी है वो है कि ये हमने माइनस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्यों सब्स्टिट्यूट किया, जबकि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से जब रेट कैलकुलेट किया जाता है तो वी डू नॉट पुट माइनस हियर. इफ यू कैन फील, you can calculate a rate of this chemical reaction between any two time intervals using this data. Suppose you want to calculate between 20 minutes and 30 minutes, you can calculate from concentration change in PCl5 or change in concentration of PCl3 or change in concentration of Cl2. So it will give 30 minus 40, that is minus 10, and we have to put a minus in the beginning, divided by 30 minus 20, क्योंकि हम इन दो टाइम इंटरवल्स के बीच का रेट कैलकुलेट कर रहे हैं. सो द डेल्टा टी विल बी 30 minus 20 and it will become 10 upon 10 or rate will be 1. We can calculate same rate of reaction from this data or from this data. So this is how we can calculate a rate of a chemical reaction. Hope you got the meaning of a rate of a chemical reaction from this example. Dear students, determination of rate of reaction को
एक और एग्जाम्पल की सहायता से हम विस्तार से समझते हैं, और अभी एग्जाम्पल है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड गैस को गर्म करने पर यह हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है, और यही अभिक्रिया इस इक्वेशन के द्वारा यहाँ दर्शाई गई है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करना, इसलिए हम बंद बर्तन में हाइड्रोजन आयोडाइड का शुरुआती सांद्रण लेते हैं 100 मोल पर लीटर। सिंस इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हम इसको मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं एट t इज इक्वल टू 0, अर्थात जब कोई अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है उस समय अभिकारक और रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज नोन एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जाहिर सी बात है, क्योंकि अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट का शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन इस समय 0 अथवा 0 होगा। वंस रिएक्शन स्टार्ट्स, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ कम होता जाता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। लेट अस से 10 मिनट के बाद हमने रिएक्शन मिक्सचर में चेक किया कि अब कितना हाइड्रोजन आयोडाइड बचा हुआ है, और चेक करने पर माना हमें पता चलता है कि बचे हुए हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन है 60 मोल पर लीटर। इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अनुसार जब हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतलाती है कि 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन बनता है। इसका अर्थ हुआ कि इन 10 मिनटों में, शुरुआती 10 मिनटों में HI का कॉन्सेंट्रेशन 100 से घटकर 60 रह गया है, अर्थात इसके कॉन्सेंट्रेशन में 40 मोल पर लीटर की कमी हुई है, या 10 मिनटों में 40 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट कितना बनेगा? जैसा कि मैंने कहा, इसे अपने आप नहीं लिख सकते हैं, वी हैव टू राइट इट विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चूंकि 2 मोल HI 1 मोल H2 और 1 मोल I2 देता है, तो 40 मोल HI will give 20 moles per liter of H2 and 20 moles per liter of I2. So 10 मिनटों के बाद रिएक्शन मिक्सचर में 60 मोल पर लीटर HI का कॉन्सेंट्रेशन होगा, 20 मोल पर लीटर हाइड्रोजन का और 20 मोल पर लीटर आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। लाइकवाइज एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, माना 20 मिनट के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन घटकर रह गया 40 मोल पर लीटर। दैट मीन्स ड्यूरिंग दीज 10 मिनट्स हाइड्रोजन आयोडाइड के 20 मोल पर लीटर कंज्यूम हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि इन 10 मिनटों में कितना H2 बनेगा। बैलेंस्ड इक्वेशन के अनुसार जितना HI कंज्यूम होता है, H2 और I2 उसके आधे बनते हैं। तो 20 मोल पर लीटर कंजम्पशन का मतलब इस दौरान 10 मोल पर लीटर हाइड्रोजन और 10 मोल पर लीटर आयोडीन का निर्माण होगा। दैट मीन्स आफ्टर 20 मिनट्स H2 का टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 20 + 10 30, और I2 का भी टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 30 मोल पर लीटर। If reaction progresses after 30 minutes, let us say HI का कॉन्सेंट्रेशन घटकर रह गया 30, that means during these 10 minutes हाइड्रोजन आयोडाइड के कॉन्सेंट्रेशन में 10 मोल पर लीटर की कमी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना H2 और I2 बना होगा। I leave it up to you to calculate it and find out the final concentration of H2 and I2 after 30 minutes of reaction. हमारा असली उद्देश्य है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर एम इज टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन फर्स्ट 10 मिनट्स। पहले 10 मिनट्स में
रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा। इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम HI के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या H2 के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या आयोडीन के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम दोनों ही तरीकों से रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, दिस वाज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन था 100 और 10 मिनट के बाद वो घटकर रह गया 60। सो व्हाट वाज द चेंज? द चेंज वाज final concentration minus initial concentration divided by time interval. The time interval is 10 minus 0. And if you remember, whenever we calculate rate using concentration of reactant, we put here one minus sign to make the rate positive. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, that comes 4 mole per liter per minute. Because unit of time taken here is minute. तो पहले 10 मिनटों में रेट ऑफ रिएक्शन HI के अनुसार 4 मोल पर लीटर पर मिनट आता है। लेट अस कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन अगेन इन फर्स्ट 10 मिनट्स बट नाउ बाय यूजिंग change in concentration of iodine or H2 because here change is same, so we can calculate with the help of I2. जब भी प्रोडक्ट के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है तो इट कम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर आयोडीन के कॉन्सेंट्रेशन में पहले 10 मिनटों में परिवर्तन आया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 20 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, सो इट कम्स 2 मोल पर लीटर पर मिनट। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन के अनुसार कैलकुलेट करें तो ये भी 2 मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। यहाँ पर एक चौंकने वाली बात है, क्यों? इसके लिए हम पुराना एग्जाम्पल देखते हैं। पिछले एग्जाम्पल में जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन PCl5 या PCl3 या Cl2 के अनुसार कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेंबर इन फर्स्ट 10 मिनट इट वाज 60 minus 100 divided by 10 and there was a minus sign, so it became 4। और यहां से भी कैलकुलेट किया था तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 आया था, यहां से भी कैलकुलेट किया था तो रेट ऑफ रिएक्शन अगेन केम एज 4। क्योंकि जब हम रेट की बात कर रहे हैं तो रेट तो रिएक्शन का है, चाहे उसे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेट करो या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से, इट शुड गिव द सेम वैल्यू। और PCl5 में ऐसा होता भी है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि HI के केस में रिएक्टेंट के अनुसार शुरू के 10 मिनट्स में रेट कुछ और आ रहा और प्रोडक्ट के अनुसार कुछ और, जो कि प्रथम दृष्टि से गलत लग रहा है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स इट शुड गिव सेम वैल्यू whether calculated with the help of concentration of reactant और प्रोडक्ट। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना है इस एग्जाम्पल की सहायता से। इस कॉन्सेप्ट को इस चित्र की सहायता से हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बर्तन ले रखे हैं, बर्तन A और बर्तन B। दोनों ही बर्तन में पानी भरा हुआ है या कोई और द्रव या लिक्विड भरा हुआ है, और आप जैसा समझ सकते हैं कि ये दोनों बर्तन इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ की टोंटी को खोला जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी की ऊंचाई B बर्तन में अधिक है, इसलिए पानी B से A की ओर बहने लगेगा। और आप समझ सकते हैं कि जितना पानी B में कम होगा उतना ही पानी A में भरेगा। लेकिन क्या B की ऊंचाई में जो कमी आ रही है और A के अंदर उपस्थित पानी की ऊंचाई में जो बढ़त हो रही है, क्या वो दोनों बराबर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि A काफी चौड़ा बर्तन है जबकि B अपेक्षाकृत सकरा या नैरो बर्तन है, तो इसमें पानी की ऊंचाई तेजी से कम होगी, जबकि A में पानी की ऊंचाई में बढ़त जरूर होगी लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना कि B की ऊंचाई में कमी हो रही है।
जबकि पानी की मात्रा जितना बी में कम होगी उतना ही ए में बढ़ेगी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या? एक तो ऊंचाई में कमी और ऊंचाई में बढ़त, ये दोनों केस में बराबर नहीं होगी। जबकि दूसरी चीज है पानी की मात्रा, the quantity of water decreased in B will be equal to quantity of water increased in container A. But we cannot say the same thing about the height of water. तो लगभग यही चीज यहां पर लागू हो रही है। दरअसल हम जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं 2 या 4, ये डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बतला रहे हैं। तो ये क्या बतला रहे हैं? ये बतला रहे हैं कि कितनी तेजी से हाइड्रोजन आयोडाइड मिक्सचर से गायब हो रही है या कितनी तेजी से हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन मिक्सचर में बन रही है। सही शब्द में इसे कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। दैट इज रेट ऑफ डिक्रीज इन हाइट एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन हाइट नीड नॉट नेसेसरी बी इक्वल। अगर बर्तन का साइज एक जैसा है तो ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन बर्तनों का साइज अगर अलग अलग है तो रेट ऑफ डिक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीज इन हाइट विल नॉट बी सेम। इन दो एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि PCl5 के डिकम्पोजिशन के केस में पहले 10 मिनट्स में रेट ऑफ रिएक्शन चाहे PCl के कॉन्सेंट्रेशन चेंज से कैलकुलेट किया जाए या प्रोडक्ट्स PCl3 और Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन चेंज से किया जाए, वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कम्स सेम, दैट इज 4 मोल पर लीटर पर मिनट। लेकिन HI के केस में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज द्वारा कैलकुलेट किया गया रेट और प्रोडक्ट के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेट किया गया रेट अलग अलग होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के डेटा से जो भी रेट कैलकुलेट किया जाता है वो रिएक्टेंट के अनुसार होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, जबकि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेट किया गया रेट होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। इसका अर्थ हुआ कि रिएक्टेंट के जितने मोल टूट रहे हों, अगर प्रत्येक प्रोडक्ट के उतने ही मोल बनते हों, जैसा कि PCl5 के केस में होता है, तो ऐसे केसेस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बराबर होते हैं और वही रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। जबकि ऐसे केसेस जहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, इन केसेस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर नहीं होते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पहले 10 मिनटों में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI इज 4 मोल पर लीटर पर मिनट, जबकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 इज जस्ट 2 मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये दोनों बराबर नहीं है। उसका कारण है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस 3 अलग अलग शब्द होते हैं। अब प्रश्न आता है कि इन केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालें। उसका सरल सा तरीका है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर बनाने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड कर देना चाहिए। इस उदाहरण के अनुसार अगर हम बात करें तो 4 इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI। इसे रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर बनाने के लिए HI के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि इस 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो रेट कम्स एज 2 मोल्स पर लीटर
पर मिनट। अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 या I2 की बात करें और इसकी सहायता से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो हमें इस रेट ऑफ अपीयरेंस को H2 के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है उससे डिवाइड कर देना चाहिए। सो जिन केसेस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, उन केसेस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ any of the products is divided by their respective stoichiometric coefficients to obtain the rate of reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक एग्जांपल है जिसकी मदद से हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन, इन तीनों टर्म्स को और क्लियरली समझेंगे। हियर इज द एग्जांपल। इट्स ए क्वेश्चन। इट रीड्स एज ammonia on heating decomposes to give nitrogen and hydrogen gases. 100 mole per liter of ammonia was heated in a container. There remains 60 moles per liter concentration of ammonia in 20 minutes. Calculate the rate of disappearance of ammonia, rate of appearance of nitrogen, rate of appearance of hydrogen, and the rate of reaction in these 20 minutes. इसका अर्थ है कि अमोनिया को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस में टूट जाती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बर्तन में 100 मोल पर लीटर अमोनिया का सांद्रण लिया गया और उसे गर्म किया गया। 20 मिनट बाद यह देखा गया कि उस बर्तन में अमोनिया का बचा हुआ सांद्रण था 60 मोल पर लीटर। इस डाटा के आधार पे हमें इन 20 मिनटों में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि यह स्टोइकियोमेट्री का सवाल है तो हमें सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और इस केमिकल इक्वेशन में अमोनिया गर्म करने पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों में टूट जाती है। इस केमिकल इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अमोनिया, इसका फॉर्मूला है NH3, decomposes on heating to give hydrogen gas and nitrogen gas. This is the equation. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह एक स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है तो इसमें केमिकल इक्वेशन लिखना ही सफिशिएंट नहीं है। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए इस केमिकल इक्वेशन को प्रॉपरली बैलेंस करना जरूरी है। सो इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड से बैलेंस करते हैं। बाय पुटिंग हियर 2, we get now 2 atoms of nitrogen. Right side also has 2 atoms, so it's balanced. हाइड्रोजन के केस में लेफ्ट हैंड साइड में 3 2 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो अगर यहाँ हम 3 लिख दें तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है। सो वी गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन लाइक दिस: 2 moles of ammonia on heating decompose to give 3 moles of hydrogen gas and 1 mole of नाइट्रोजन गैस। अब हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न ये कहता है कि शुरुआत में अमोनिया 100 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन पर ली गई है। शुरुआत का मतलब T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 मिनट पर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन है 100 मोल पर लीटर। चूंकि T इज इक्वल टू 0 बतलाता है कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो इस समय प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन 0 और 0 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 20 मिनट जब गर्म किया जाता है तो बर्तन में अमोनिया का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन होता है 60 मोल्स पर लीटर। इसका अर्थ हुआ कि इन 20 मिनटों के दौरान अमोनिया
100 से घटकर 60 रह गई। दैट मीन्स 40 मोल पर लीटर और 40 मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो अब अगला प्रश्न आता है कि इस दौरान कितना हाइड्रोजन और कितने मोल्स नाइट्रोजन के बने होंगे। इसको हम बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्री की सहायता से लिखते हैं। यहां आप देखेंगे कि अगर 2 मोल अमोनिया के टूटते हैं तो उनसे 3 मोल हाइड्रोजन और यहां कुछ नहीं लिखा है तो 1 मोल नाइट्रोजन का बनता है। When 2 moles of ammonia decompose, they give 3 moles of hydrogen and 1 mole of nitrogen gas. या इसे समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, दो से 3 बनने का मतलब 1.5 गुना बनना और 2 से 1 बनने का मतलब हाफ टाइम्स बनना, आधा बनना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार शुरुआती 20 मिनटों में अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई है 40 की। तो जब 40 मोल्स पर लीटर अमोनिया डिकम्पोज होगा तो वो कितने हाइड्रोजन के मोल्स बनाएगा? उत्तर है 2 से बनते हैं 3, तो 40 से बनेंगे 1.5 गुना। दैट मीन्स 40 into 3 by 2. If we calculate, it comes 60. तो हाइड्रोजन के बनेंगे 60 मोल्स और नाइट्रोजन के कितने मोल बनेंगे? तो जब ये 2 मोल डिकम्पोज होते हैं तो नाइट्रोजन के 1 मोल बनते हैं, मतलब जस्ट हाफ मोल्स बनते हैं। तो 40 डिकम्पोज होंगे तो आप सीधे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन के 20 मोल्स बनेंगे। और अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें 40 इंटू 1 बाई 2, 2 मोल डिकम्पोज होने पर 1 बनता है, तो 40 मोल डिकम्पोज होने पर कितना बनेगा? उत्तर है 20। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आफ्टर 20 मिनट्स विल बी लाइक दिस। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होंगे 60 और नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन होगा 20 मोल्स पर लीटर। दिस इज द प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन। शुरुआती कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब हम आते हैं प्रश्न पर। इस डेटा की सहायता से हमसे पूछा गया है कि पता कीजिए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया कितना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, और फाइनली व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दीज 20 मिनट्स। तो आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब गायब होने की दर, अमोनिया के गायब होने की दर कितनी है, तो आप यहां से सीधा सीधा बता सकते हैं कि 20 मिनटों में 40 मोल पर लीटर अमोनिया गायब हुई है। तो दर कितनी हो जाएगी? दर का मतलब प्रति मिनट। 20 मिनटों में गायब होती है 40, तो 1 मिनट में गायब होगी 40/20, यानी कि 2 मोल पर लीटर पर मिनट। हर मिनट में अमोनिया के 2 मोल्स खत्म हो रहे हैं या गायब हो रहे हैं। अगर आप इसे मैथमेटिकली करना चाहें तो ये कुछ ऐसा होगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया कैन बी रिटन एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और यहां हम माइनस लगाते हैं। माइनस इसलिए ताकि ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपियरेंस पॉजिटिव बन जाए। तो यहां आप देख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया मीन्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया आफ्टर 20 मिनट्स माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दैट इज 20 माइनस 0, और शुरू में हमने यहाँ माइनस लगाया। सो इफ वी कैलकुलेट इट 60 माइनस 100 विल गिव माइनस 40, और वो माइनस 40 इस माइनस के कारण प्लस 40 बन जाएगा। सो इट विल बिकम 40/20 और 2 मोल per liter per minute. This is the rate of disappearance of ammonia. Got it? अब अगला पार्ट जो पूछा गया है वो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, कि उसी बर्तन में हाइड्रोजन की उत्पत्ति या उत्पन्न होने की दर क्या होगी। तो वो भी आप यहाँ मौखिक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इन 20 मिनटों में कितनी हाइड्रोजन बनी है। क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 से 60 हो गया है, तो इसका मतलब हुआ कि इन 20 मिनट्स में 60 मोल्स पर लीटर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन उत्पन्न हुआ। और अगर 1 मिनट में आप निकालना चाहें, क्योंकि आपको दर निकालनी है, दर या रेट का मतलब पर मिनट चेंज, तो आप 20 से इसे डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 3 मोल्स पर लीटर। और मैथमेटिकली
you can calculate it by a similar formula, that is change in concentration of hydrogen. चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, क्योंकि हमें रेट निकालना है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय टाइम इंटरवल. इफ वी कैलकुलेट इट, it comes 60 upon 20, that gives 3 mole per liter per minute. This is the rate of appearance of hydrogen. Now the third part is to calculate rate of appearance of nitrogen. मौखिक रूप से अगर आप करना चाहें तो इस डेटा से, नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन डेटा से आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते. तो ये हो जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन टाइम इंटरवल. और अगर आप फॉर्मूला वाइज करना चाहें तो ये होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, that is 20 minutes minus 0 minutes. If we calculate, it gives 1 mole per liter per minute. Rate of disappearance of ammonia is 2 mole per liter per minute. Rate of appearance of hydrogen is 3 mole per liter per minute, and rate of appearance of nitrogen is 1 mole per liter per minute. So these are three rates, disappearance and appearance rate. फाइनली उन्होंने एक और चीज कैलकुलेट करने को कही है, एंड दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन. जैसा कि हमने पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कहीं से भी कैलकुलेट किया जा सकता है. और कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका उत्तर है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस को डिवाइड कर देते हैं. तो यहां अगर आप इस रिएक्शन का रेट अमोनिया के डिसअपियरेंस के रेट से निकालना चाहें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, और इसको हमने क्या करा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर लिया. सो इट गिव्स 1 upon 2 into rate of disappearance of ammonia is 2. So it gives 1. That is 1 mole per liter per minute. This is the rate of reaction calculated from rate of disappearance of ammonia. Same thing can be calculated from the rate of appearance of hydrogen. Again, कैसे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन जो आया है उसको इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, या मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन ऐसा होगा. दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन. इसको हमने हाइड्रोजन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड कर दिया, और हमने जब कैलकुलेट किया था rate of appearance of hydrogen was 3. Now 3 divided by 3, it gives 1. तो हाइड्रोजन के अनुसार भी रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल पर लीटर पर मिनट आता है. क्योंकि यहाँ एक और प्रोडक्ट है नाइट्रोजन, तो उसके रेट ऑफ अपीयरेंस से भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है. अब तक आप समझ गए होंगे कि इसके लिए हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन को उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करना पड़ेगा. मैथमेटिकली दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन दैट कम्स 1 मोल पर लीटर पर मिनट. और इसको आप डिवाइड किससे करेंगे? अगर इसको आपने रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर बनाना है तो हमें इसे नाइट्रोजन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बैलेंस्ड इक्वेशन में जिस संख्या से यहाँ गुणा किया जाता है दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 1 से ही आप इसे डिवाइड करेंगे एंड इट विल गिव वेरी सेम वैल्यू 1 मोल पर लीटर पर मिनट. तो इन 3 कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस से कैलकुलेट करें या प्रोडक्ट के अपीयरेंस से, यू विल गेट सेम वैल्यू.
जबकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस एक जैसे ही हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया है 2 मोल पर लीटर पर मिनट, जबकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन है 3 मोल पर लीटर पर मिनट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन है 1 मोल पर लीटर पर मिनट। Whereas rate of reaction will be same, that is 1 mole per liter per minute. So this is how we can differentiate rate of disappearance of reactant, rate of appearance of product and rate of reaction. अंतिम बात जो हमें यहाँ समझनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन ना तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया के बराबर है, ना ही ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए जो भी इसका अपीयरेंस का रेट होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जबकि हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो इसके अपीयरेंस का रेट रेट ऑफ रिएक्शन का 3 गुना होगा, जबकि अमोनिया के डिसअपियरेंस का रेट अभिक्रिया के वेग का 2 गुना होगा। होप यू गॉट मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।